Okay, students, today we are going to start chapter number 3 of literature part, that is the little girl. Now, what is the best part of literature is you get a beautiful message from the story. Now, in this chapter, the little girl, the main character is Kezia. She is a little girl and she is afraid of her dad because her dad is so much rude person and he's a so much strict person. He's an angry man. So Kezia, the little girl, is afraid of his dad. What she thinks is that her dad doesn't love her so much. Yes, because he always scolds her. So she thinks her dad is not a best man for her. Of course, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी डांट देते तो you always think that. But your parents are always right. They have the experience. They think if you will do this, what will happen, right? They already know what will be the result if you do this. So they always think best about you. They always love you. They always think that you should go ahead, you should come up. What is not good for you, they will always say no. What is always good for you, they will always say yes. So always listen to your parents. They are the best person for you in the world. No one will love more than them to you. No one will also give best advice than them. So please just listen to them, focus on them, love them. What they do for you is best for you. They have more experience than you, like what will happen if you do this, right? So whenever you take decision, if they say no, you won't think at that time that they are thinking good for you. No, you will always think why they are saying no. They always say no to me, right? But it's not like that. When they say no, they have a reason. That will let you know in the near future. So always listen to them. They will love you. They'll give you best advice to you for the future, for the things you are going ahead. So in this chapter, the little girl, which is written by Catherine Mansfield, right? The little girl is written by Catherine Mansfield. In this chapter, before we read, do you feel you know your parents better now than while you were much younger? Perhaps now you understand the reasons for some of the actions they used to upset with you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father has changed from fear to the understanding will probably find an echo in every home. In this story, what we will learn is कि उसका जो fear है, उसका जो डर है, वो कैसे करता है, चेंज हो जाता है into better understanding. वो धीरे धीरे अपने डैड को समझती है. कैसे fear to understanding. She brings that change कि वो अपने पापा को समझे और वो कोशिश भी करती है कि वो अपने पापा को समझे. And that feeling changes from fear to understanding. Now let's do it. Para 1. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl means the main character, whose name is Kezia. He means father. Figure out to be feared and avoided. उससे डर लगता था, इसीलिए वो अपने फादर को हमेशा अवॉइड करती थी, इग्नोर करती थी, जिससे उसको डर लगता था, राइट? फिर आते हैं एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. एवरी डैड इज बेस्ट फॉर हर डॉटर और हर सन, हिज सन, राइट? तो एवरी मॉर्निंग उसके डैड क्या करते थे, उसके रूम में आते थे एंड उसको कैजुअल किस, बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड ऑफ फादर एंड डॉटर, उसको कैजुअल किस देते थे, उसको लव करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. तो उसको क्या सामने रिस्पॉन्स देती थी, येस फादर, गुड बाय. उसको हमेशा कैजुअल से गुड बाय करती थी. एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन लॉन्ग द रोड. फिर क्या होता है, उसको एक रिलीफ मिलता है, रिलीफ, रिलैक्सेशन मिलता है. कब उसको सेंस अंदर ऐसे वो थम सी जाती है, वो अच्छा फील करने लगती है, उसको गुड फील होता है. कैसे, जब वो आवाज़ सुनती है, नॉइज़ सुनती है, किसकी, कैरियज की, उसके गाड़ी की, उसके पापा के गाड़ी की आवाज़, जो धीरे 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 गेट से, घर से दूर जाती है. जब उसके पापा वर्क पे जाते हैं तो धीरे 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 उसके घर से जो उसके डैड की गाड़ी है वो धीरे 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 चली जाती है फॉर द लॉन्ग रोड. जब वो रोड के साइड चली जाते हैं, वो रिलैक्स फील करती है. एक उसको होता है कि हाँ अभी मैं थोड़ी घूम सकती हूँ, रह सकती हूँ घर में, अच्छा सा फील कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज In the evening when he came home, she stood near the staircase
जब भी इवनिंग में उसके डैड घर पे आते थे, वो कहाँ पे खड़ी रहती थी? स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, वो क्या सुनती थी? उनकी जो हैवी आवाज़। ऑफकोर्स ही इज़ अ मैन, उसकी आवाज़ हैवी होगी ही, तो उनकी आवाज़ लाउड होगी ही, तो उनकी वजह से वो की सुनती थी। इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। कौन बोलता है ये? उसके डैड बोलते हैं। ब्रिंग, क्योंकि ऑब्वियसली है वो थके आते हैं, इतना वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है, उनको बोलते हैं ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ। कहाँ पे? ड्राइंग रूम, जो एक बड़ा सा रूम है। हैजंट द पेपर कम येट, वो किसको पूछते हैं? उसकी मम्मा को, लाइक केजियाज ग्रैंड मदर को, कि क्या न्यूज़पेपर नहीं आया है? अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। सो मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आर आउट देयर। वो अपने मम्मा को, यानी कि केजियाज ग्रैंड मदर, लाइक उसके फादर की मम्मी को बोलते हैं कि आप जाके देख के आओ क्या मेरा पेपर आया है कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और क्या बोलते हैं कि ऑल्सो ब्रिंग माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स भी साथ में लेके आना। ओके, देन कम्स सेकेंड पैरा, केजिया। नाउ केजिया इज योर मेन कैरेक्टर, द लिटिल गर्ल। मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। उसको कौन बुलाता है? उसकी मम्मा बुलाती है। और क्या उसको बोलते हैं कि अगर जब भी पेरेंट्स होते हैं, उनको कुछ भी काम होता है, तो पहले वो आपको अच्छे से वो नाटक नहीं करते हैं, बट ये दे आर ऑलवेज गुड। बट और उनको अच्छा रहने के लिए वो हमेशा बच्चों को क्या बोलते हैं? आप अच्छे बच्चे हो ना, चलो ये करके देखो, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। तो सेम उसकी मम्मा है, उसको ऐसे उसको मोटिवेट कर रही है कि येस, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल तो आप नीचे आ जाओ और अपने पापा के जो बूट्स हैं, वो थके हुए आए हैं, तो उसको बूट्स रिमूव कर दो। उसकी मदर उसको ऐसे समझा रही है। फिर क्या होता है? स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। वो पहले अपने पापा से डरती थी, राइट? तो वो हमेशा उसको वो काम करना ही नहीं था कि वो उसके पापा को फेस कर सके, बिकॉज वो उसे डरती थी, उनको डर लगता था, तो वो हमेशा अवॉइड करती थी उनके पास जाना। वो ये उसको नहीं पसंद आया, वो ये नहीं करना चाहती थी कि अपने पापा के पास आए और उनको फेस करे। तो वो क्या होता है, वो स्लोली धीरे धीरे बहुत ही स्टेयर से नीचे आ रही है हॉल की तरफ। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम का जो डोर है वो पुश करती है। फिर by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक वो नीचे आती है तब तक उसके पापा क्या करते हैं, जो स्पेक्टिकल्स हैं वो अपने ऊपर लगा देते हैं, राइट? जो स्पेक्टिकल्स ऐसे पड़े होते हैं नीचे नोज की तरफ, वो ऊपर कर देते हैं और किसकी तरफ देखते हैं? केजिया की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत टेरिफाइंग है। मतलब उसको नहीं पसंद आ रहा है, किसको? केजिया को। बहुत रूड वे, बहुत एंगर, मतलब ऐसे जैसे एक स्ट्रिक्ट पेरेंट देखता है ना, वो लिटिल गर्ल की तरफ देख रहे थे। लिटिल गर्ल कौन? केजिया। फिर आता है, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स। कौन बोल रहा है ये? उसके पापा उसको बोल रहे हैं, वेल केजिया जल्दी करो, हरी अप करो और मेरे बूट्स निकालो एंड टेक देम आउटसाइड। मेरे बूट्स निकाल के बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तुम एक अच्छी बच्ची हो, राइट? तो तुम ये कर सकती हो, मेरे बूट्स निकाल के क्या तुम उसे बाहर रख सकती हो? यू आर अ गुड गर्ल। वो उसको, इसके डैड उसको ऐसे मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से वो काम करे। तो उसमें केजिया का जवाब क्या आता है? उसका आंसर, आई डोंट नो फादर। वो ऐसे हड़बड़, मतलब वो धीरे धीरे ऐसे वो क्या बोलते हैं, पॉज करके वो उसको जवाब देती है, आई डोंट नो फादर। ओके, शी इज रिएक्टिंग लाइक दैट। फिर you don't know, if you are stutter like that mother will have to take you to the doctor। उसके पापा भी उसको ऐसे ही रिएक्ट करें, you don't know मतलब वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि ये तुम किस लैंग्वेज में बात कर रही हो? अगर तुम स्टैमर हो, स्टैमर मतलब स्टटर, मतलब जो पॉज लेकर बात करता है, राइट? अगर तुम ऐसी ही बात करोगी तो आपकी मम्मा आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। शी वॉज नॉट, वो जैसे ही बॉर्न हुई थी उसको ये कुछ नहीं था, ऐसी बीमारी कुछ नहीं थी। ये वो सिर्फ उसके पापा के सामने वो ऐसी हो जाती थी, बाकी वो सबके साथ घर में रिलैक्स से बात करती थी। तो पर उसके फादर को क्या लगा कि उसको कुछ है पहले से ही, राइट? तो उसको ऐसे बोल रहे, अगर आप ऐसे ही बात करते रहोगे तो आपकी मम्मा जो है वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। नाउ क्या होता है, शी नेवर स्टटर्ड इट विद अदर पीपल एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप।
वो मैंने आपको वही बताया, वो घर में जो भी दूसरे लोग थे वो उनके सामने ऐसे बात नहीं करती थी, वो हमेशा ऐसे ही गुड आंसर्स देती थी, राइट। जो कि सिर्फ उसके फादर के सामने ही वो ऐसे बड़बड़ा के बात करती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, शी वॉज वेरी ट्राइंग, क्या हार्ड टू से द वर्ड्स जो बाहर आ सके, ओके। फिर व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched अबाउट। उसके पापा पूछते हैं किसको, केजिया को, कि मैटर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर यू लुकिंग, क्यों इतने वरीड है, क्यों इतनी वरीड है, राइट। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी मी अप, टेक अप बैक टू द टेबल केयरफुली। अभी उसके डैडी जो हैं वो केजिया की मम्मी को क्या वार्न करते हैं कि केजिया ऐसी क्यों हो गई है, वो ऐसे ऐसे डर डर के वो क्यों जी रही है, ताकि मतलब वो ऐसे रिएक्ट करे जैसे वो कुछ सुसाइड करना चाहती है, वो एक दिन अपने आप को ऐसे मार देगी, वो ऐसे डर डर के क्यों जीती है, वो क्यों इतनी वरीड रहती है, वो क्यों ऐसा मौका ढूंढती है कि वो सुसाइड करने का। तो वो किसको वार्न कर रहे हैं, उसकी मदर को, किसकी मदर को, केजिया की मदर को। तो फिर वो क्या बोलते हैं केजिया को कि केजिया कम हियर एंड जो मेरा टी कप है, जो चाय का जो कप है, प्लीज़ मेरे टेबल पे अच्छे से लाओ ताकि वो टूट ना जाए, केयरफुली लाओ कि आप उसको तोड़ ना सको। ये उसके डैडी उसको बोलते हैं, राइट। फिर he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned। ये जो पैराग्राफ है किसको सजेस्ट करता है, वो जनरेट करता है स्ट्रक्चर किसका, फादर का। जैसे ही केजिया उनको जैसा समझती है, केजिया उनके बारे में जो सोचती है, वो क्या सोचती है, ही वॉज सो बिग, वो बिग है बहुत, उसकी हैंड्स एंड नेक क्या है, स्पेशली जायंट है, राइट। हिज माउथ क्या है, बिग है, कैसा लगता है जब भी वो यॉन्ड करते हैं, यॉन्ड यानी पता है ना, वो जब भी यॉन्ड करते हैं वो बिग लगते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। केजिया क्या सोचती है कि अगर उनके बारे में सोचा जाए तो वो बहुत जायंट है, जायंट यानी लार्ज, बड़ा सा, ठीक है। फिर क्या आता है, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। यू नो, जब भी अपने ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर्स है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस लेवल के पर्सन होते हैं, इंसान होते हैं, इसीलिए अभी यहाँ पे केजिया आपको हमेशा वो ऐसे ही सजेस्ट करते हैं कि यू शुड स्पेंड योर टाइम्स विद योर फादर्स एंड मदर्स, ताकि वो आप एक दूसरे को समझ सको, आपकी लेवल को समझ सको, एक दूसरे को इतना मोटिवेट करो, इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप एक दूसरे की बात सुन सको, उतना समझ सको और उस पर काम करो। तो सेम केजिया की जो ग्रैंड मदर है ना, वो क्या करती है, केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती हैं, क्यों, टू हैव अ नाइस टॉक विद द मदर एंड फादर, ताकि उनका जो बॉन्ड हो वो और भी अच्छा हो और लवेबल रहे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। जब भी वो नीचे जाती थी तभी उसकी मदर को क्या फाउंड करती थी कि उसकी मदर जो है वो रीडिंग करती हैं, और जो फादर हैं स्ट्रेच्ड आउट, ऑब्वियसली वो थके हुए हैं तो वो स्ट्रेच्ड आउट होते हैं, आराम से कहाँ पे सोते हैं, सोफ़ा पे। इस हैंकरचीफ को, उनके जो फादर का हैंकरचीफ है वो हमेशा उनके फेस के ऊपर लगा हुआ रहता है। उनका जो एक फीट है, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनका जो फीट है एक, वो हमेशा एक बेस्ट कुशन पे पड़ा रहता है, और वो कैसे सोते हैं, साउंडली, आराम से। यू नो वन यूज टू स्लीप साउंड निकलता है, वो ऐसे ही वो स्नोरिंग वाला साउंड निकलता है। जो थके हुए होते हैं, जिनको अच्छी गहरी नींद होती है, उनका साउंड हमेशा ऐसे ही निकलता है। तो वो कैसे सोए हुए हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। नेक्स्ट इज शी सैट ऑन अ स्टूल। वो जब भी हॉल में आती है, ड्राइंग रूम में आती है, जब भी उसके ग्रैंड मदर उनको भेजते हैं, तो वो कहाँ पे भेजती है उनको, ड्राइंग रूम में। तो केजिया कहाँ पे बैठती है, शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेविंगली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक अप। वो डर डर के स्टूल पे बैठती है, ग्रेविली यानी सीरियसली, वो बहुत ही सीरियस मूड में, उसका जो फेस है वो बहुत सीरियस है। कहाँ पे बैठती है, सीरियसली होकर स्टूल पे बैठती है। एंड जब भी उसका जो पापा वोक अप एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड हिम द टाइम, जब भी वो बैठी तब उसके पापा हैं वो जाग गए, कहाँ से, नींद से उठे, अपने आप को स्ट्रेच किया, जो थके हुए होते हैं उनकी अपनी आलस निकाली। हर कोई थका हुआ होता है, आपके पेरेंट्स, आपके पापा भी जब थके हुए आते हैं घर पे तो ही ऑल्सो स्ट्रेचेज आउट, राइट। उनके भी वो भी थकान वो होती है तो वो भी दूर करते हैं स्ट्रेचिंग से, राइट। एंड जब वो उठते ही क्या पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, किसको,
केजिया को। आज द टाइम देन लुक्ड एट हर, उनको टाइम पूछ के वो केजिया की तरफ देख रहे हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। उनके पापा जब उसको देखते हैं ना तो वो एक सीरियस मूड में होती है, वो ऐसी परेशान सी, बहुत डरी हुई सी। तो उसके पापा उसको क्या बोलते हैं कि तू इतना क्यों देख रही है घूर घूर के, तो ऐसे लगता है जैसे वो लिटिल ब्राउन ऑल है, ऑल ऑल्सो स्टेयर करता है, तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। फिर वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, एक दिन ऐसा आता है वो लोग इंडोर बैठे हैं, क्यों, क्योंकि कोल्ड है बाहर, बहुत विंटर है, तो वो लोग अंदर बैठे हैं, कोजी कोजी वार्मी, मतलब एक घर में होता है ना आपको ठंडी नहीं लगती है, ऐसे वो लोग ऐसे माहौल में बैठे हैं। तब उसके ग्रैंड मदर उसको क्या सजेस्ट करती है, सुनो। ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसको ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती है कि आपका जो पापा का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है, और उनको आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हमेशा ना आपके घर की हैप्पीनेस को देखते हैं, उनको देखते ही वो हमेशा घर की खुशियों के लिए सर्च करते हैं। तो इधर एक मोमेंट आया जहाँ पे जैसे ही वो कीजिया है उसके फादर का साथ उसका जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं है इतना, तो ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना तू ऐसा कुछ करे, कुछ ऐसा उनको स्पेशल फील कर रहा है, उनका जो बर्थडे आ रहा है, ताकि उनका बॉन्ड है वो अच्छा रहे, लवेबल रहे, राइट। तो उसका जो ग्रैंड मदर है ना उनको सजेस्ट करती हैं कि वाई डोंट यू मेक हिम पिन कुशन। अभी ये रीज़न क्यों बोला गया कि पिन कुशन, हमेशा उसके जो डैड है ना वो हमेशा जो थके हुए आते थे ना, तो वो ही यूज्ड टू लाई ऑन द बेस्ट कुशन्स, उनको वो अच्छा लगता था आराम के लिए, तो वो एक उनके लिए हेल्पफुल रहता। इसीलिए कीजिया की जो मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो हमें उनको सजेस्ट करती हैं कि वाई डोंट यू मेक पिन कुशन फॉर गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, वो अपने पापा को वो गिफ्ट दे सके ताकि वो उनको गिफ्ट काम आए और उनका जो बॉन्ड है वो बना रहे। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तभी वो उनको क्या देती हैं, एक ब्यूटीफुल सा पीस देती हैं जो कि येलो कलर में है, जो उनका क्लोथ है वो सिल्क में है, राइट, मटेरियल है जो वो सिल्क का है। फिर लेबरियसली विद डबल कॉटन, राइट, वो जो लेबरियसली मतलब हार्ड वर्क किया हुआ, कौन सा, वो कॉटन है, उसका डबल कॉटन है। द लिटिल गर्ल स्ट्रेच्ड 3 साइड्स, स्टिच्ड किया, और उसने वो जो सिल्क का क्लोथ था ना, उसने बहुत हार्ड वर्क से कॉटन से अंदर कॉटन भर के, जब भी ऐसे कुशन्स होते हैं, गिफ्ट्स होती हैं, वो फ्लफ़ी होते हैं, बहुत नरम होते हैं, तो उसके अंदर वो कॉटन होता है, रूह होती है, ताकि आपको वो अंदर नरम नरम लगे, एंड जब भी आप वहाँ उसके पास बैठो तो यू डोंट फील दैट हार्ड, तभी वो आपको इतना सॉफ्ट लगता है। तो सेम उसके अंदर उसने कॉटन फिलअप किया था, उसने 3 साइड से स्टिच्ड कर दिए थे, बट व्हाट टू फिल इट विथ, उसने सोचा और अंदर ऐसा क्या मैं फिल करूं ताकि ये जो कुशन है वो और फ्लफ़ी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। वो अंदर ही अंदर ऐसा सोच रही है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन दी गार्डन, जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ पे थी, वो अपने ग्रैंड मदर को सर्च कर रही थी। वो जैसे ही बाहर गई तो द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर है वो गार्डन में बैठी हुई है, एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ को देखा, शी वॉज इन गार्डन, तो ऐसे चलते ऐसे वो वंडर कर रही है, मतलब वो वंडर हो रही है, तभी उसको उसकी मदर का बेडरूम देखा। बेडरूम का दरवाज़ा ओपन था और वहाँ पे उसने क्या देखे, स्क्रैप्स देखे। स्क्रैप्स यानी ऐसे पीस ऑफ पेपर्स जो आपके किसी काम के ना हो, जो भी थिंक हो आपके कुछ काम के ना हो। तो जैसे ही वो चलती जा रही है, वो सोचती जा रही है कि मैं अंदर क्या फिलअप करूँ, उसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसने देखा चलते उसकी मम्मा के बेडरूम में वो स्क्रैप्स पड़े थे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। जो बेड है वहाँ पे ऑब्वियसली टेबल होता है, ये बाजू में लैम्प पड़े होते हैं, यू कीप जनरली योर वॉचेस, थोड़ा बहुत पेन वैन पड़ा होता है। तो वो क्या डिस्कवर करती हैं कि बहुत सारी शीट्स पड़े हैं, किसकी, पेपर की। गैदर्ड देम, इकट्ठे हुए पड़े हैं। टोर देम इनटू टाइनी पीसीस, उसने क्या किया, उन सारी शीट्स को फाड़ दिया, टोर कर दिया पीसीस ऑफ पेपर्स में, एंड स्टफ्ड हर केस। और जो ये जो उन्होंने जो ये टाइनी पीसीस में जो पेपर जो उन्होंने टोर किए, टीयर कर दिए, वो कहाँ भर दिया उसने, वो कुशन में। और जो 4th साइड उसका बाकी था, एक साइड जिससे वो भर के वो स्टिच करना चाहती थी, वो भी उसने स्टिच कर लिया। मतलब चारों साइड उसने एक
अच्छे से स्टिच करके वो कुशन उसने अपने पापा के लिए रेडी कर दिया। फिर दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यूज एंड अ क्राई इन द हाउस। अभी ट्विस्ट आता है स्टोरी में। क्या था, उस दिन जब उसने वो पेपर्स जब टीयर किए थे ना, उसने जब क्यूजन बना लिया था, उसी दिन घर में क्या था, एक एंग्री सा प्रोटेस्ट सा माहौल था। एंग्री मैन मतलब एक होता है ना कि भाई अब जब भी अपने पापा की जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे बिखेर देते हो तो ही यूज़ टू गेट एंग्री, ही यूज़ टू गेट डिस्टर्ब कि उनके जो काम की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खो जाए। एक तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अप होते हैं बिकॉज उनका वर्क का काम होता है, राइट, घर का काम होता है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, तो उनकी वजह से उनका जो बिहेवियर एवरी मैन का जो होता है ना, जो फादर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या होता है वो एक स्ट्रेस लाइफ में रहते हैं, तो उनका जो गुस्सा होता है ना वो ऑब्वियस बात है, तो कैसे एंग्री हो जाते हैं कि नहीं। तो ये सेम केस हुआ, एंग्री एटमोसफियर था, राइट। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, वो एक पोर्ट में काम करते थे, राइट। तो उनका एक स्पीच था जो पेपर्स कीजिया ने क्वेश्चन में डाले थे, जिसने उन्होंने टीयर कर दिया था, जो फिलअप किया था क्वेश्चन में। एक्चुअली वो पेपर्स बहुत काम के थे। किसके थे? उसके फादर्स के थे, जो कि वो स्पीच था जो उनके फादर देने वाले थे। कहाँ पे? पॉट पे। वो बिखर गए थे, बिखर यानी लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट कम्प्लीटली, राइट। रूम्स सर्च किए गए उसकी ग्रैंड मदर के, कीजिया के, एंड देयर 2 रूम, ड्राइंग रूम, सब रूम सर्च किया। सर्वेंट्स को भी पूछा गया कि क्या उन्होंने कहीं पेपर्स देखे, राइट। फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम। फिर क्या आती है, कीजिया की जो मम्मा है वो कीजिया के रूम में आती है, राइट। तो क्या बोलती हैं, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। वो कीजिया से पूछती हैं कि क्या आपने कोई पेपर्स देखे हमारे रूम में, हमारे टेबल पे। किसको पूछती हैं वो? कीजिया को पूछती हैं। ओह यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो क्या बोलती, हाँ मैंने देखे, राइट, बट मैंने उस जो पेपर्स जो थे उनको मैंने टीयर अप कर दिए और मैंने अपने सरप्राइज के लिए वो बना के रखे। उसकी मम्मा है वो क्या बोलती है, व्हाट? उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, स्क्रीम्ड किया। मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। वो क्या बोलती हैं, जल्दी से, इंस्टेंटली, अभी के अभी, राइट नाउ आप डाइनिंग रूम में आ जाओ, राइट। फिर क्या होता है, एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू। ड्रैग्ड यानी खींचना उसको, यू नो, जब भी कोई बच्चा मस्ती करता है, शरारत करता है, तो जब इसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो आने से मना कर देता है। क्यों? उसके फादर की डर की वजह से। तो सेम कीजिया नहीं आना चाहती थी तो भी उसको खींच के लाया गया। कहाँ पे? उसके फादर के सामने। टू एंड फ्रो मतलब वो इधर से उधर घूम रहे थे, यू नो। जब तक कोई बच्चा आता है तो फादर ऐसे 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 उल्टे सीधे ऐसे घूमते रहते हैं। कैसे? हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। कहाँ रखा उनका हैंड्स? बिहाइंड हिज बैक। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत तेज़ी से बोला, वेल ऐसे। मदर एक्सप्लेन, तभी उनकी मम्मा है वहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो खड़े रह गए जब वो वहाँ से यहाँ से घूम रहे थे। उनके हैंड्स जो बैक थे, पीछे थे, वहाँ उन्होंने वो हैंड्स जो थे वो तो बैक थे ही, बट वहाँ पे वो खड़े रह गए। डिड यू डू दैट? उसके पापा ने उसको पूछा कि क्या तूने ये किया है? नो 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 शी विस्पर्ड। उसने धीरे से बोला, वापस से उसने वही जो उसने अपने पापा के सामने जो होती है वो सेम ऐसे ही हो गई। नो 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 मदर, गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग। ये कौन बोलता है? ये कीजिया के फादर बोलते हैं उसको कि जाओ उसके रूम में जाओ, और वो जिसमें उसने जो ये फिलअप किया था, जो उसने टीयर किए थे, वो जो पेपर्स थे जिसमें उसने फिल किया था, वो पूरी की पूरी चीज़ लेके आओ। डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। लेके आओ।